strategy कहीदेवी कि how to move through this 3 months. Then I will comes to the study part. तापर हम study part को आसवा. Now voice is clear to all. Fine. Yes, sir. Okay. So as of now, let's say if I talk about the prelim date, that would be the 20th. So it would be October 20, 2024. So that would be the tentative date OPSC set. So as of now, so this date is been mentioned by the OPSC that they will have or they will conduct the session for the prelims 2023 in October 20th, 2024. That is the deadline they are having as of now. So now how to propagate, as we are in the mid of July, or let's say in the second half of July, that means the 20th of or July 20, 2024 যদি আমি দেখিবা, so we are here. Fine. So as we are here, so we have to move and have to plan for that. ठीक अछि, आप ही plan करिया पड़ियो. Now जहाँ जहाँ अच्छे open, you can ask to me. So now we have exactly what I am having in the mind. I will definitely share what should be your strategy. See, as this one is the deadline for the OPSC, this one is the tentative, this one is what supposed to be the exam supposed to be on this particular date, but hey pare no hey pare, that's a different thing. But as we are here, so we need to have the plan. Now plan केमती करिबा, that means let's say August कथा नहीं जा, September कथा नहीं जा, then October. So you are having 3 months, let's 90 days, let's say you are having 90 days plan. So obviously 90 days, that means केते बेले पळै जो जणा पड़िबो नाही 90 days. सेथमे आगुरु भी मध्य कहिथिली कि जो माने प्रीलिम क्लियर करि ना हो, don't lose that time. You have to perform somewhere है ना, कोर्स ने कोठी तुमको एंगेज रहा को पड़िबो पाठ सहित जा भी हो. Now this 90 days एबे समस्त को समान. Let's say those who are beginner, for them this would be also same, and those who are the already appeared several times, for them also this would be the same. Time is segment is same for all. So as the time segment is 90 days is left, now how to approach the syllabus, and you have to complete the what syllabus, but you need to complete the syllabus. So that would be the objective. The objective would be, I would say, in this 90 days that you need to complete the syllabus. Okay, आमको syllabus cover करिया पड़िबो in this 90 days रे objective जदि हम देखिबा, syllabus तो हर हालत रे करिया पड़िबो. Then apart from that, you need to also have to go through the current affair, because that will have weightage. Now weightage को जदि हम देखो at least 20 to 25 questions हमको मिली. So जदि हम देखिबा, so there it would be 20 to 25 questions हमको current affair रो मिली जबो. So current affair part also one of the major area which we can't neglect that one. ताकू भी हमें neglect करि परिबा नाही. So for that, what should be your plan? तापे plan कौन हवा दरकार सेटा भी मु डिस्कस करिवि. Then comes to the syllabus part. Now how to move through the syllabus. अच्छा एबे समझते hope voice तो ठीक ठाक आसुची, everyone fine. Now see, comes to the planning part. When we come to the planning part के 90 days and we are having the syllabus, obviously the civil service syllabus would be pretty lengthy one. It is a समस्त जाना अच्छे, because this is the field and you have been associated yourself. तो निजो को काफी समय से associate करके रखी छो. Now come to the syllabus. Now syllabus रो दी भाग रे में divide करिबा. One would be the most, that means on the basis of the syllabus must be divided into two parts. For example, mo matare that means the fast go part, that means हमको हर हालत रे ताको दरकार, and there would be the second go part. ठीक अछि. When I say fast go part, then what to cover here?
लेट्स से फॉर एग्जांपल पॉलिटी कि because you know कि हाँ polity at least there would be 17 question, at least that will carry 17 questions. So on the priority basis syllabus must be finished on the basis of priority. Here it should be priority must be given to what here. So priority हम कहाँ को दबा, for example polity की दबा आगे, because एथि पई दबा that will carry at least 17 to 20 questions. तेणु syllabus 90 days आम पाखरे अछि, as we are having 90 days and we need to finish the syllabus. So objective first I will say finish polity, because polity finish करबा दुईटा लाभ हबो. एक तो you would be able to at least attempt the 17 questions from the polity and done. Now polity को पुणी आमे केमिति अप्रोच नबा सेटा पुणी दरकार ना. देखो polity itself a मतलब obviously it's a lengthy book, different concepts also there, and those who are for the first times going through the books it would be obviously difficult and no way to cover the syllabus. And obviously जदि हम देखिबा to be honest हाँ जो मैंने ऑलरेडी पढ़ीच पॉलिटी ताले 17 टू जदि हमें 20 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करूचे पॉलिटी टू ताले हमको पॉलिटी रो को पार्ट आगे पढ़िबा दरकार सेटा भी जानिया दरकार. एमते नै कि होल पॉलिटी तुम पढ़िया को बसी जाउछ एई टाइम रे 90 डेज इज लेफ्ट बट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू फिनिश ना. पॉलिटी पे तुम केते दिन दवा दरकार, टू माय माइंड 7 to 9 days इज एनफ. 7 to 9 days ताठू अधिक तुम दे परिबो नाही. So you have to give what 7 to 9 days to go through the polity. That means दी प्रकार तुम सिलेबस को पढ़ी परिबो. Either दी प्रकार कैंडिडेट थाए. सपोज जने कहबो सर मु दिन को 8 घंटा पढ़ीबी, 8टा सब्जेक्ट पढ़ीबी घंटाए घंटाए करिकी, और जने कहबो मु पूरा कंटिन्यूअसली गोटे वीक पॉलिटी पढ़ीबी सारीबी, नेक्स्ट वीक रे आ गोटे सब्जेक्ट पढ़ीबी, नेक्स्ट वीक रे आ गोटे सब्जेक्ट पढ़ीबी. So there would be two types of candidate. Now you have to pick which one is better for and which one you are comfortable with. Clear? तो पॉलिटी को तुम हार्डली 7 days नियो. देखो 9 days कहीं भी पढ़ी परिबो नाही, कारण many times I have also experimented, मु भी तो पढ़ी बहुत थर, but hardly 5 days. After going through 5 days you will be exhausted. तुम exhaust हो जिवो, because now देखो मु एथि पई कहूची तमन को लागियो के might be someone मतलब expecting कि I need to go through some books वगैरह पढ़ाई थांती एबे, बट एबे एथि पई पढ़ोनी कने फास्ट डे प्लानिंग जेते तमरो प्लानिंग भलो हबो सेते प्रोसेस जेते भलो हबो सेते रिजल्ट भलो हबो, रादर देन रैंडमली पढ़ी की किछि लाभ हबो नाही. सो दैट इज व्हाई मु कहली के सिलेबस को हमको 90 डेज रे फिनिश करियर अछि, बिकॉज़ एक्सपेक्टेड डेट तो सही अनुसार हम कहछ अदर टेंटेटिव सपोज टू हैपेंस देयर. हाँ कि नहीं टेंटेटिव जदि हम देखबा तो ये टेंटेटिव डेट को नहीं कि हम करूचे ताको हम नहीं कि प्लान करूचे. तो सही बेसिस रे पॉलिटी को आगे खत्म करो, 7 डेज नहीं जाओ ताको खत्म करिया पे, देन तुम 7 डेज परे ताको रिवीजन पे 2 डेज नहीं जिवो, तो दैट वुड बी 9 डेज रे तुमको सरीबो. बट सांगे सांगे नहीं एमती नहीं कि 7 डेज रे पॉलिटी सरी गला तापर 2 दिन रिवीजन पे बसी पड़छि ना, जीवो मासे जाऊ सेही भीतर आउ कि बुक पढ़ी सारो तापर गोटे रिवीजन स्टार्ट हबो, सो दैट केते मन रहिला कोन हइला सेटा हमको जणा पड़िबो. सेम 2 दिन परे एकाथरे नहीं सेमती करा हबो. तो पॉलिटी ना पॉलिटी रो हमें को पार्ट को आगे पढ़िबा. पॉलिटी रो देखो सब पार्ट रो आसु नहीं. फॉर एग्जांपल मु कहूची एबे इलेक्शन सरीची, हां कि नहीं, दैट मींस इलेक्शन ऊपर हर हालत रे क्वेश्चन आसीबो. सो दैट मींस यू नीड टू गो थ्रू द ईसीआई. ईसीआई ऊपर क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो और इलेक्शन ऊपर. तो इलेक्शन रिलेटेड जहाँ अच्छी तुमको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज रे जाइकी पढ़िया को पड़िबो. तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज रे यू मस्ट गिव प्रायोरिटी टू द ईसीआई रादर देन के होल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. हाँ तुम कह सर आउ बाकी जो अच्छी बाकी जहाँ रहा जमती कि फॉर एग्जांपल कमिशन फॉर द एससीज फॉर द एसटीज ओबीसी आपको पढ़, बिकॉज दे आर द वनरेबल सेक्शन पाई, तेणु ताकू आगे प्रायोरिटी दवा दरकार. सो दैट यू हैव टू गो थ्रू इन द कॉन्स्टिट्यूशनल. फॉर एग्जांपल एसटीज तो या जो कमिशन अच्छी ताको पढ़ी दियो. ओके बाकी ऑल टाइम फेवरेट एरियाज आल्सो दे आर पॉलिटी रो. ऑल टाइम फेवरेट एरियाज कौन, फॉर एग्जांपल एफआर, फॉर एग्जांपल डीपीएसपी. सो दीज आर द ऑल टाइम फेवरेट एरिया. देन योर पार्लियामेंट. सो दीज एरिया को पढ़ी दियो, ये ही सब क्वेश्चन आसीबो. तमे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रिएम्बल, पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, सुप्रीम कोर्ट पढ़ी दियो. ठीक अच्छे.
तो सुप्रीम कोर्ट पढ़ी दियो खत्म हो जो ही सब क्वेश्चन आस मैक्सिमम क्वेश्चन देखियो तुमको जुडिशियरी ओबियसली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ी दियो एथुर क्वेश्चन आसीबो नहले एफआर रो आसीबो नहले डीपीएसपी रो आसीबो नहले तुमको वर्तमान जो कहली ईसीआई तो जदि भाव ये 4-5टा एरिया भी पढ़ी जाऊे ना तो 5टा क्वेश्चन तो आराम से 10टा क्वेश्चन एठू फॉर्मेशन हो बिकज फंडामेंटल राइट को छाड़ी क्वेश्चन हो पारिबो नाही सो देन कम्स टू द पार्लियामेंट सो दीज आर द एरिया आम कह पॉलिटी रो फॉर एग्जांपल एफआर डीपीएसपी पार्लियामेंट ईसीआई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट so these reason if somebody is covering these area there would be pretty good number of questions तुमको मिल जिवो मतलब एटा मु ता पई कहूची जहा पाखरे जी के भी पढ़ी नहीं कौन करिवो और जी पॉलिटी आगुरु पढ़ी छि ऑब्वियसली पॉलिटी समस्त पढ़ी था देन यू हैव टू टेक 7 days टू कवर द होल देन अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम कने एबे भी इलेक्शन सरी छि लाइक गोटे सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी हवा पई कोन दाको हम कहूचे नेशनल लेवल स्टेट लेवल पार्टी पई क्वालिफिकेशन कोन सिंबल केमते डिस्ट्रीब्यूशन हुए इलेक्शन कमिशन कौन कौन पोर्टाल करी देन तुम कह के लेट्स हम कह एमसीसी मॉडल ऑफ कंडक्ट कोड कौन तादर कौन ये सब को आम पॉलिटी पार्ट रो करेंट को लिंक करके पढ़ो तो दैट वुड बी द अप्रोच ठीक अच्छे हो पॉलिटी फाइन आउ पॉलिटी रो किसी कार डाउट अच्छी जदि कह दियो कि आउ को पार्ट जदि तुमको लगुच तो मु कहली जुडिशियरी ना आउ गोटे मु सब कहे फिजिकल क्लासेस रे आज जो मैंने भी ऑनलाइन अच्छो कि द बेस्ट थिंग विल बी आस्क्ड टू यू सब मन रखो ता बाहर क्वेश्चन आसो ना एंड यू कैन अप्लाई एनीवेयर ईदर लेट इट बी तमें मतलब यूपीएससी रे देखो ओपीएससी रे देखो कौन सी एग्जाम रे लेट्स से पॉलिटी रू मते क्वेश्चन बना जिवो तो मु को क्वेश्चन बनैबी आई विल ऑब्वियसली मेक द क्वेश्चन फ्रॉम 3 एरिया ऑफ द पॉलिटी वन दैट इज द बेस्ट एरिया ऑफ पॉलिटी सेकंड the area let's say for example OST and the area in current affair ठीक अच्छे कौन सी सब्जेक्ट को आम 3 भाग रे भाग करथो तार बेस्ट एरिया तार ओस्ट एरिया एंड तार करंट अफेयर पार्ट या बाहर क्वेश्चन कौन सी सब्जेक्ट रे आसीबो नाही कहीं बिकज फॉर एग्जांपल पॉलिटी रो बेस्ट एरिया में देखिसे कि फंडामेंटल राइट बेस्ट एरिया वुड बी देयर बेस्ट एरिया वन ऑफ द बेस्ट इज डीपीएसपी देन प्रियम्बल देन सुप्रीम कोर्ट ओब्वियसली जुडिशियरी सिस्टम रे सबुठु बेस्ट किए सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट आगे पढ़िबो ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आगे पढ़िबो वेरी ऑनेस्ट तो ओब्वियसली वी नीड टू गो थ्रू द सुप्रीम कोर्ट बिकज दैट इज द हाईएस्ट एंड द बेस्ट सो सुप्रीम कोर्ट सेमती आम असेंबली आगे पढ़िबा ना पार्लियामेंट आगे पढ़िबा ओब्वियसली पार्लियामेंट आगे पढ़िबा बिकज दैट इज द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द लॉज इन द नेशन सो दैट इज व्हाई सो यू शुड गिव मतलब गोटे पॉलिटी को भी पढ़ला भितर वी नीड टू डिवोट द टाइम ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी एंड द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द क्वेश्चंस कि फ्रॉम वेयर दे विल हैव मोर क्वेश्चंस ठीक अच्छे सो दैट इज व्हाई आई इन माय वर्ड्स आई कॉल देम द बेस्ट एरिया मु मतलब ट्रेडिशनली आई हैव बीन सेइंग कि दिस इज द बेस्ट एरिया एंड यू नीड टू परफॉर्म वेल हियर सो दीज आर द बेस्ट एरिया हाँ कि नहीं तेणु आम से देन करेंट जमती कि फॉर एग्जांपल ईसीआई एबे न्यूज रे अछि current so here you have to go through so ECI let's say election commission is there it was in news by election will be there so in that particular topic or the polity if I divide best OST and current part so you need to go through the best first then current part baki OST part let it be OST part or conflicted part like let's say center state relation he gala किसी conflicted areas also there where some sort of doubt ambiguities conflicted part हमें जाको को so that will be there from the polity correct हाँ सेटा मु कहली ना जहाँ न्यूज लेट्स से हाँ से तुम कहल कि डिस्क्वालिफिकेशन ताकू भी देख कि लेट्स से एंटी डिफेक्शन लॉ अनुसार केमती होची कि लेट्स से पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट अनुसार केमती होची ठीक अछि तार जेते वेदर ईसीआई रो पावर तुम देखो ईसीआई मतलब हे शुणी थो कि केते आईपीएस आईएएस मान को ट्रांसफर कर देले का सस्पेंड कर देले हाँ कि नहीं ये सब जो पावर अच्छे तो ताकू आम केमी से डिराइव करुचे कौटी आणुची सीएजी होगला तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को आम आनिबा ठीक अच्छे करेक्ट जो मैंने ऑनलाइन रे अच्छो फाइन एवरीवन सो दैट वुड बी द अप्रोच फॉर द पॉलिटी तो ये अप्रोच आम देखा बिकज ओब्वियसली मुझे कहली कि 17 to 20 क्वेश्चन रहा तेणु आपको आम छाड़ी पार ना
so that is how you need to go through the polity. बाकी जदि हमें next जीवा next other topic को आसबा because this tentative date is let it be there. okay, let's say तुमको ताले मिलुची 7 to 9 days रे तुम जदि polity खत्म करूचो then comes to your बाकी next जदि हमें आसीबा so let's say तापर हमें कोन देखिबा then आम ओपीएससी रे जदि आउ काहा को फोकस करे obviously चारिटा पिलास तो रहिबो there would be economics obviously हम कहबे economics रहिबो there would be geography will be also there आउ कोन रहिबो history will be there तो history polity and environment आउ कोन रहिबो environment. So this area also there big areas जदि हम कहबा तो economics you will have at least 10 to 12 question in OPSC UPSC रे मध्ये 10 plus रहे geography that would be 15 question could we expect at least 15 question there would be history 10 to 15 questions will be there because ओडिशा पार्ट अछि सेति पई तो टिके वेटेज अधिक रहिबो environment at least हमें 10 to 12 क्वेश्चन मध्ये एक्सपेक्ट करूछे ठीक अछि सो जदि हमें एठी देखिबा दैट मींस लगभग जदि हमें 12 एवरेज नै जवा है ना तो दैट मींस दैट इज गोइंग टू बी व्हाट जदि हमें देखा 48 50 क्वेश्चंस लगभग तो ये चारटा को जदि हम मिसि दबा लगभग मतलब हमें तो वर्तमान देखुचे कि 48 जदि नउछे बट ये लगभग तुमको 55 to 60 जाय नहीं पारंती ए माने दे कैन कैरी नंबर ऑफ क्वेश्चंस टुगेदर ये 60 क्वेश्चन कैरी करी पारंती जदि हमें ऑन एन एवरेज 15 कर देबा तो ये 55 एते भी ऑप्टिमिस्टिक न होई कि जदि मु कहबी एट लीस्ट लेट्स से फॉर एग्जांपल 50 to 55 दे विल कैरी तो ये बहुत ही बड़ा बिग नंबर ये बहुत ही बिग नंबर नाउ यू हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टनेस लेट्स से ये तो गला पॉलिटी तो हमें ऑलरेडी देखि दैछे कि देयर वुड बी आल्सो पॉलिटी हम देखले कि हां देयर वुड बी 17 to 20 क्वेश्चंस हमें नहीं दैछे ताले आकु तो हमें आगो सारे पड़िबो काना ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज मु डिस्कस करूची तो पॉलिटी को आगे खत्म कर दिया अच्छा देन हमें तमे देखले कि ज्योग्राफी हिस्ट्री दे विल बी एट लीस्ट 15 क्वेश्चन पाखा पाखी दी जण को मिलुची बिकॉज़ हियर दिस पार्ट ओडिशा ज्योग्राफी इज एडेड एंड लास्ट टाइम बहुत भलो मतलब मु कहबी भलो मतलब कोन कि क्वाइट गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन फ्रॉम द ओडिशा पार्ट हिस्ट्री रे तो ऑब्वियसली लिटिल बिट टफर रीजन इज हियर के तुमको ओडिशा पढ़ियो पड़िबो ना ओडिशा पढ़ियो पड़िबो ओडिशा पार्ट ना ये पार्ट रे कोन होय दोज हु आर द प्योर यूपीएससी एस्पिरेंट कना आगुर तो यूपीएससी एस्पिरेंट जो माने दोज हु वाज इन दिल्ली एंड द प्रिपेयरिंग फॉर कंप्लीटली यूपीएससी देयर वाज अ टेंडेंसी नॉट टू अपियर फॉर द ओपीएससी टेंडेंसी थिला बट बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी इन यूपीएससी दे आर नाउ अपियरिंग तो ये थरा तुम देखिबो लास्ट टाइम जो माने मेंस लिखिसंती ओपीएससी मेजॉरिटी वेयर द यूपीएससी एस्पिरेंट्स और जो माने यूपीएससी मतलब ओडिशा रे भी थाई कि प्रिपेयर करूथिले बस एही भले कोचिंग नै छंती सेही माने ही क्वालिफाई करछंती रादर देन के खाली टिपिकल ओपीएससी आगरु जो थिला से माने पाई नाहंती तो दैट वुड बी देयर तन करके हिस्ट्री पार्ट को जदि तमे कवर करिवो तो ये ठीक लेंदी पोर्शन रही छी ऑब्वियसली बोथ विल बी लेंदी पार्ट बट एथरो मध्ये हमें कोन करि परिबा सेग्रीगेट करि परिबा लेट्स से फॉर एग्जांपल तमे ओडिशाटा पठी देई था कहना एठू कंसंट्रेट करूचंती से ओडिशा को तो बेटर टू फोकस ओडिशा पार्ट कारण एथि पई बिकॉज़ इफ यू वांट्स टू हैव द लिवरेज यदि तुमको लिवरेज दरकार ना तो यू हैव टू फोकस ऑन द ओडिशा पार्ट बिकॉज़ बट मॉडर्न पार्ट जदि हम देखिबा मॉडर्न हिस्ट्री ये तो समस्त को कम बेसी आसे तेणु एठी कोन रहबो प्लस माइनस जदि मु कहबी ये रहबो न्यूट्रल पार्ट तेणु एठी जे लीड करिवो हिस्ट्री ओवरऑल से लीड करिवो तो हिस्ट्री रे ओडिशा पार्ट रे जे लीड करिवो ओवरऑल ही विल और ही सी विल डेफिनेटली लीड इन द सेक्शन ऑफ हिस्ट्री एंड दिस वुड बी लिटिल बिट टफर रहइबो एते इजी भी रहइबो नाही बिकॉज़ देयर इज ए मतलब तुम जे देखिबो नेशनल लेवल रे बहुत जण फैकल्टी अछंती आई वुड नॉट नेम देम even they also get confused by going through the history question of OPSC and OPSC is having tendency to ask the difficult question in history segment पता नहीं को to question आनती भगवान ही जानती they have the different source so but by the way they always having a tendency to ask the different questions
खास कर ओपीएससी बट यूपीएससी एते डिफिकल्ट पचारेनी तो ये टिके मतलब डिफिकल्ट सेगमेंट रहिबो बट जदि तुमको लगुच डिफिकल्ट मो मतरे फास्ट फिनिश द मॉडर्न पार्ट देन ओडिशा पार्ट एंशिएंट पार्ट ये तीन मेडिएवल जदि न भी करूच नहीं मु एथि कहूची मु कहनी कि पढ़नी मु एथि कहूची लेट्स से जदि भी तुमको प्रिलिम रे काम न देला से तुमको मेंस रे काम देबो ओपीएससी रे मेंस रे काम देबो सेथि पई मु कहूची दैट इज व्हाई एंशिएंट मॉडर्न ओडिशा पार्ट भी जदि कवर करूछ मतलब एति की कवर करो ताकि नॉर्मल क्वेश्चन गोटे जेमती मिस्टेक न हो अदरवाइज जदि बहुत बेसी क्वेश्चन मिस्टेक हो ना तो नेक्स्ट कैंडिडेट विल डेफिनेटली गो अहेड तो सेटा को टिके फोकस करके ओडिशा पार्ट टाको टिके फोकस कर मॉडर्न पार्ट एंड एंशिएंट पार्ट तो एंशिएंट पार्ट को मध्य हमको टिके देखिया पड़िबो सो दैट वुड बी द थ्री एरिया अपार्ट फ्रॉम दैट तार मेडिएवल पढ़ी कि हाँ जदि एथरे तुमको कहबी बेटर टू गो थ्रू द शॉर्ट नोट्स एथरे जदि तुमको किसी शॉर्ट नोट मिलुची और पीवाईक्यूज कर दियो पीवाईक्यूज यूपीएससी रो कर देले बेटर रहइबो मेडिएवल सेक्शन रे ठीक अछि तो दैट वुड बी हिस्ट्री पार्ट ना ज्योग्राफी रे तुम देखिबो सेथरे भी सेम 12 टू 15 क्वेश्चन आसुची ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को मिसई देले मिनिमम तुमको 25 रु 35 क्वेश्चन वैरी करिवो माने यूपीएससी रे ई वर्ष देखो बहुत सारा ज्योग्राफी क्वेश्चन आसला हाँ कि नहीं ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट मिसिकी 35 रु 37 क्वेश्चन आसी ई वर्ष यूपीएससी रे तो फिर भी आमे जदी एते ऑप्टिमिस्टिक न होबा ओपीएससी पई 30 क्वेश्चन रु जदी आमे 32 33 क्वेश्चन नउचे मोर देन एनफ टू कट ऑफ को तो सही थरे क्लियर हे जिवो तो कौन से बट से रिस्क नहीं हबो एमती नहीं कि गोटे सब्जेक्ट रे समस्त को सबु आसीबो तो दैट वुड बी आल्सो रिस्की थिंग दैट मींस आमे एको कोन करबो एवरेज करतियो तो आपको एवरेज तुम करियो ज्योग्राफी को भी तुमको एवरेज करिया पड़िबो एवरेज अर्थात आई मीन दोज एरिया दे आर आस्किंग फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर वुड बी वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी तो ये जो दुईटा पार्ट ओडिशा ज्योग्राफी रो कम क्वेश्चन आसीबो प्रीलिम रे खास कर ये मेंस को फोकस करूछिंती ओडिशा पार्ट बट प्रीलिम रे क्वेश्चन आसुची एमते नहीं कि लास्ट टाइम क्वेश्चन आसीथिला तो ओडिशा पार्ट रे केमती रहिबो सेमती मु तुमको प्रूफ करेबी कि ओडिशा पर केमती क्वेश्चन आसुची लास्ट टाइम तुम देखबो फॉर एग्जांपल मंडासुर एई भलिया क्वेश्चन से पचारुछंती हां कि नहीं ना एई भलिया क्वेश्चन काहे पचारुछि बिकॉज़ दे आर द अगेन बेस्ड इन ओडिशा हां कि नहीं तो ओडिशा रे बेस्ट कोन फॉर एग्जांपल जदी जण को क्वेश्चन बने तो सिमलीपाल ऊपर बने काना दैट इज द बेस्ट ऑब्वियसली द बायोस्फीयर रिजर्व लेट्स से सुंदरबन ही जिवो तो बेस्ट रीजन सेटा भी पचारे काना ताठू भलो बेस्ट कोन ही पारे मैंग्रोव तार क्वेश्चन ही परिबो लेट्स से मते डैम ऊपर बनिया अछि तो ऑब्वियसली आई विल आस्क हीराकुद कारण बाकी तार छोट मोटो तो मतलब ऑप्शन रे रहिबो किंतु प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू हीराकुद बिकॉज़ दैट इज द बेस्ट डैम तो मु सबले कहै बेस्ट को फोकस करो सेमती लेट्स से एबे तुम जानथो कि करंट अफेयर थिला कि सुंदरगढ़ रे जो आर्क जियो आर्क जहाँ को यूनेस्को हेरिटेज साइट साइट मिली एंड वन ऑफ द कह कि बिगेस्ट आर्क इन इंडिया तो यही भाई किसी करंट अफेयर पार्ट भी थी जोटा मुझे आगुरी कही कि बेस्ट हो पारे ओस्ट हो पारे ना करंट अफेयर हो पारे तो ताकू हमको देखा पड़ो दैट इज वाई कि ज्योग्राफी पार्ट को जो तुम देख सेमती प्रायोरिटी बेसिस रे देख ओडिशार प्रायोरिटी बेसिस रे ओके ना से प्रायोरिटी बेसिस रे ही पढ़ा जिते आम क्राश कोर्स जो रहिबो ऑल वुड बी प्रायोरिटी बेसिस रे दैट वुड बी माय इंस्ट्रक्शन कि मतलब जो माने भी फैकल्टीज पढ़ेबे दे विल हैव द इंस्ट्रक्शन कि यू हैव टू फोकस ऑन द प्रायोरिटी एरिया रादर देन दोज प्रिटी एरियाज को दरकार नहीं बुझ पारछ ना कि हमको सेथरो क्वेश्चन आसीबार प्रोबेबिलिटी बहुत कम जदि भी आसीबो सेटा समस्त को डिफिकल्ट रहबो यू वुड नॉट बी द एक्सेप्शनल साइट तमे एक्सेप्शनल साइट रहबो नहीं दैट वुड बी डिफिकल्ट टू ऑल तो आमे कोन करबा जेते बेले भी ओडिशा ज्योग्राफी पढ़ा जिवो तो दैट वुड बी ऑन द बेस्ट साइट रो पढ़ा जिवो फॉर एग्जांपल के मुझे करी फॉरेस्ट तो सबुठु भलो फॉरेस्ट पढ़ा जिवो लेट्स से नेशनल पार्क सबुठु आगे जोटा भलो ताकू पढ़ाओ तो एई बेसिस रे सबु टॉपिक को पढ़िबा जेमती लेट्स से मॉडर्न हिस्ट्री जने पढुची तो तार बेस्ट पार्ट को आगे पढ़ो पॉलिटी पढुची तार बेस्ट पार्ट को आगे पढ़ो ऑब्वियसली तुम मिसाइल पढुच फॉर एग्जांपल आउ गोटे मु एग्जांपल दउची एई वर्ष यूपीएससी क्वेश्चन उठाओ साइंस टेक रो आ देखो सबुठु बेस्ट पचारची लेट्स से स्टील्थ टेक्नोलॉजी कथा नहीं जो ऑब्वियसली हम जितने मिसाइल टेक्नोलॉजी कथा कहवा तो स्टील्थ टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर द मिसाइल और सबुठु भलो मिसाइल कहबो अग्नि अग्नि कहीं पचारुची मो कहवा था रीजन कौन कि अग्नि ही पचारुची ब्रह्मोस ही पचारुची बिकॉज दे आर द बेस्ट इन देयर सेगमेंट ये क्रूज रे बेस्ट आउ से होची कौन कौन कहबे बैलिस्टिक रे बेस्ट से होची
बैलिस्टिक रे बेस्ट तो से ताकू ही पचारि रादन के छोट मोट कोटी मिजाइल टेस्ट है ताकू पचरा जीवो सेमती नहीं सब बेस्ट को फोकस कर लेट्स से बैंकिंग रू क्वेश्चन आसीबो बैंकिंग रू जेते इंस्टीट्यूट अछि सबटु बेस्ट के आरबीआई सो क्वेश्चन विल कम फ्रॉम आरबीआई रादर देन के तापर के नाबार्ड तापर जदि क्वेश्चन आसो को थ्रू नाबार्ड रू तो ऑब्वियसली हमको फोकस करिया पड़िबो आरबीआई नाबार्ड देन काहाकू तापर जेते एमती ना कि एसबीआई पढ़िया पे लगी कि दरकार नहीं देन वी विल कम्स टू द रूरल बैंक एंड अर्बन बैंक तापर आम बैंकिंग सिस्टम रे लैडर तलू जा तो फास्ट टॉप रू पढ़ी पढ़ी आसो जो एग्जिस्टेड होगले लेट इट छाड़ दिया दरकार नहीं और किसी डेवलपमेंट है जमी लेट से एनबीएफसी आसला कि एनबीएफसी रो किसी चैलेंजेस है तो आम से पार्ट को आसवा कि एंजेल इन्वेस्टर वार्ड गोटे तुम शुणिच करेन्ट अफेयर चली से पार्ट को आसवा तो बैंकिंग बा इकोनॉमिक्स रो सेमती बेस्ट पार्ट को आगे पढ़ा ओके तो सबू सब्जेक्ट रो बेस्ट पार्ट को आगे पढ़ दैट वुड बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू फिनिश द सिलेबस एंड ऑब्वियसली क्वेश्चन सही थ्रू आसीबो बुझी परछ नै होप क्लियर एवरीवन बुझा पड़छि तमन को है ना के जण अछो एबे हाउ मेनी इयर्स दे ठीक अछि तो फोकस कि आमे बेस्ट सब मु सेमति पई सबु मिसाइल केबे भी पढ़िबो नाही मु कहली सपोज आउ गोटे मु कहछि लेट्स से तुमको गोटे क्वेश्चन कुहा जेबो कि व्हाट वुड बी द क्वेश्चन फॉर द डीप स्पेस मिशन ना आमे मंगलयान करिचे चंद्रयान करिचे एबे शुक्रयान हबो सूर्ययान भी कहि परबो जाको आदित्य कहउचे आमे अच्छा यांको भितरे सबटु बेस्ट कोन इधर बेस्ट नॉले रिसेंट दीटा आनिया पड़िबो एबे जोटा फेल हे जैछि सेटा ओस्ट रे जीवो ताले भी जदि चंद्रयान पचरा जीवो तो आमे आ पूर्वटा फेल हेतला ताकू काहे कि चंद्रयान 3 ही पढ़िबो ना बेस्ट सबटु कोन 3 तो फास्ट पढ़िबो टिके हां ठीक अछि 2008 रे हेतला फास्ट को भी पढ़ि देबा तो बेस्ट को पढ़ ऑब्वियसली फास्ट ताकू पढ़िया पड़ो नहले हबनी तेणु करी चंद्रयान जेतरा आमे पढुचे सूर्ययान कथा नै जाओ ताकू हम कहउचे आदित्ययान तो ता पई पढो काना फर्स्ट टाइम हिची तो एई भलिया थॉट रहिबा दरकार एस्पिरेंट रो पढ़िला बेले देखिबो सब बेले क्वेश्चन सेही थ्रू ही आसीबो बट टिके डेप्थ रे जाई कि पढ़िबो रादर देन जेते मिजाइल अछि सब पढुचे दरकार नै मते गोटे क्वेश्चन बनार अछि लेट्स से मिलिटरी एक्सरसाइज तो इंडिया बहुत सारा कंट्री सहित मिलिटरी एक्सरसाइज करूची बट आई वुड नॉट आस्क के हाँ से ओमान सहित कौन कला तुम देख क्वेश्चन आसेनी ना ओमान सहित भी करूनी कि इंडिया ताले आसुनी कहीं क्वेश्चन लेट्स से ओमान सहित भी इंडिया एक्सरसाइज करूची बट आसुनी कहीं व्हाई दे आर आस्किंग फ्रॉम द फ्रांस यूएसए रशिया ए सब मु कहि बेस्ट दे आर द बेस्ट पार्टनर दे आर हैविंग द बेस्ट डिफेंस प्रैक्टिसेस जोठू आम किसी शिखि परिबा तांको सहित करबा ना आ सहित करी कोन ये तो आमठू शिखिबे आउ कोन लेटेस्ट थिबो लेट्स से नोवाडिक हर्डिंग जोटा थिला एबे काजाखस्तान सहित एबे हेछि तो अदरवाइज लेटेस्ट पचरा जीवो तो यू हैव टू फोकस दैट एरिया बाकी एरिया को छाड़ दियो किसी दरकार नहीं कहना सेटा कोन रहबो ई दे तो हम पाखरे टाइम नहीं दुई से पढ़ी किसी भी सिग्निफिकेंस बहुत ही कम ठीक अछि तो प्रत्येक एरिया को ना बेस्ट एरिया आइडेंटिफाई करबा इटसेल्फ आर्ट तो सेटा कि ऑब्वियसली समवन इज नीड टू हेल्प यू कि गोटे कहबो कि हां दिस इज द बेस्ट एरिया यू नीड टू प्रैक्टिस देयर किस ए टू ही क्वेश्चन आछो अदरवाइज सब एरिया तुमको बेस्ट लागिवो सेमती हेले ही परिवोनी ठीक अछि क्लियर तो ये ज्योग्राफी सेक्शन रे सेमती हमें सपोज हमें जियोमॉर्फोलॉजी रो किछु क्वेश्चन पढ़िबा तो बेस्ट कोन प्लेट टेक्टोनिक बेस्ट क्वेश्चन बेस्ट एरिया में कहि परिबा और हमें देखुचे कि हां दे हैव बीन आस्किंग द लैंडफॉर्म्स रे पचरुची तो लैंडफॉर्म्स को टिके पढ़ी दियो किबा ओशन करेंट वगैरह पढ़ौची सेथ्रु पचार दियो तो दैट वुड बी द एरियाज को हमें केमती डिवाइड करिबा देन इकोनॉमिक सेगमेंट रे मु कहबी तो ज्योग्राफी हिस्ट्री हाँ एनवायरनमेंट रे कोन ना जेते साधारणतः एनवायरनमेंट रो क्वेश्चन करेंट रो आसीबो एनवायरनमेंट आउ इकोनॉमिक्स रो टेंडेंसी होची मैक्सिमम टाइम दे विल आस्क फ्रॉम द करंट अफेयर ध्यान से सुनिबो एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स साइंस टेक यथि जो क्वेश्चन आसे दे आर ऑलवेज करंट अफेयर ओरिएंटेड आसे 90% क्वेश्चन जदि भाव 12 क्वेश्चन आसिला ना तो 90% क्वेश्चन यार कोन रहिबो करंट अफेयर बेस्ड रहिबो इकोनॉमिक्स रो एनवायरनमेंट रो भी रहिबो एंड साइंस टेक रो भी ये जो तीनटा सब्जेक्ट प्रीलिम रो साइंस टेक एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स ये सब बेले करंट अफेयर ओरिएंटेड थाए चाहे से यूपीएससी हो कि ओपीएससी हो तेणु याकू करंट अफेयर एंगल रू पढ़िबाटा बेटर फॉर एग्जांपल लेट्स से आमे कहबछि तुमको कहा जबो कि
क्वेश्चन गोटे आसला प्रिलिम रे कि व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेप्स इज टेकन बाय द आरबीआई टू इंटरनेशनलाइज द रूपी और गोटे क्वेश्चन आसो कि व्हाट वुड बी द रेपरकशन फॉर द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रूपी तो एमती किसी कहि पारे तुमको किंबा हाउ मेनी कंट्रीज इंडिया हैज डन बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ हमें कहबा लोकल करेंसी जहाँ को हमें को करेंसी स्वैप तो तापर क्वेश्चन आसी पारे जोटा कि चली एबे प्रैक्टिस रे कने आरबीआई भी चाहूची रूपी की डिजिटलाइज करा जिवो किंबा तुमको ई रूपी पचारि पारे एबे ई रूपी चलछि तो ताकू पचारि पारे कने एबे लेटेस्ट करंट अफेयर तो ई रूपी पचारि पारे ई रूपी रो बेनिफिट्स कोन अच्छा मते टैक्स रो क्वेश्चन पचार अछि सबटो बेस्ट टैक्स सिस्टम कोन जीएसटी तो जीएसटी ही क्वेश्चन आसीबो ना रादर देन कि से छोटो मोटो आसीबो सेबडा आसीबोनी जहाँ क्वेश्चन आसीबो जीएसटी रो कने जीएसटी भितर बहुत एरिया अछि तो जीएसटी को फोकस करा जिवो से जीएसटी काउंसिल हे पारे कि जीएसटी को अमेंडमेंट ओपीएससी तो पचार अमेंडमेंट जान जीएसटी दी थर पचार एथि पे पचारला तार रीजन जोटा मु कहि बेस्ट ओस्ट करंट तार रीजन पुट कर दिया देखो मिल जाउची क्वेश्चन कि कहीं पचारा से आमेंडमेंट पुणी तार नंबर पचारि को बिल नंबर केते आमेंडमेंट नंबर केते एगुड़ा सब पचारि दी थर पचारि ओपीएससी हाँ कि नहीं तो मैंने देखी क्वेश्चन फाइन एवरीवन तो एथरे मध्ये आमे क्वेश्चन देखिचे तेणुक सब से बेस्ट एरिया ओस्ट एंड करंट अफेयर को फोकस कर डन तो ये एरिया को आम देखिचे और किसी स्कीम सब पढ़ा दरकार नहीं तुमको लगुच कौटा गोटे सबुठ भल स्कीम मतलब सोसाइटाल इंपैक्ट भल रहीटा पढ़ रादर दैन कि नहीं छोटो मोटो किसी गोल्ड स्कीम है ये से किसी दरकार नहीं हाँ तो इम्पोर्टेंट दरकार अदरवाइज ताकू दरकार नहीं तेणुक आम इकोनॉमिक सेगमेंट रे भी एमती लेट्स से मॉनिटरी पॉलिसी ये गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर आरबीआई को लेकिन से आसो इनफ्लेशन होगला आउ देख एथरे साधारणतः आमर ओपीएससी रे जिते भी एस्पिरेंट थाए आई वुड से 95% एस्पिरेंट नॉट कंफर्टेबल विथ इकोनॉमिक्स ओडिसा रे तो ओडिसा रे जत्ते की पिला ओपीएससी दउछंती बा यूपीएससी 95% दे आर नॉट कंफर्टेबल विथ इकोनॉमिक्स माइट बी कि हाँ दे हैव नॉट गोन थ्रू मतलब राइट कोचिंग हो पारे किसी भी हो पारे जहाँ भी कोचेस हो पारे दैट्स अ डिफरेंट थिंग तो ये एरिया रे डिफिकल्टीज ओपीएससी एस्पिरेंट्स को सब थाए बुझे ना कारण आमर टेंडेंसी अच्छी कि इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज डिफिकल्ट तो ये भाया नहीं कि गोटे चलती मतलब परसेप्शन तो ये एरिया रे जदि तमें किसी बेटर कर 10 क्वेश्चन भी कर बहुत ही भल रही दैट विल गिव यू ओब्वियसली अपर हैंड जदि आम डिस्कस कर तो ये पार्ट को भी टिके तमें देखिपर ये पार्ट रे पीवाईक्यूज देखी दियो पीवाईक्यूज को एनालिसिस कला परे तुमको जदि लगुच कि हाँ दिस सेक्शन इकोनॉमिक्स मते अधिक फोकस करिया पड़िबो से सेक्शन को फोकस करो तो इकोनॉमिक्स को आम जदि देखिबा दैट वुड बी देयर ठीक अच्छे तो इकोनॉमिक्स को आम देखले कि हाँ बहुत भल एरिया अच्छी तो ताकू देखीदेव जमती तुम एग्रीकल्चर सेक्टर हो गला इकोनॉमिक्स रो तो ये पोर्शन रू क्वेश्चन से मैंने फ्रिक्वेंटली पचारुंट तो दैट वुड बी देयर कि हाँ एमती रहिबो देन हिस्ट्री एनवायरनमेंट कहीदेली एनवायरनमेंट जिते कन्वेंशन अच्छी प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशन ये दुईटा को फोकस करिवो आर प्रोटोकॉल्स कन्वेंशन कॉन्सेप्ट एरिया जेमिति कि देख बारंबार सही एस्टुआरी सही ये सब क्वेश्चन पचारुछि हाँ कि नहीं तो बारंबार इकोसिस्टम रू क्वेश्चन आसुची जदि आम देखा इकोसिस्टम तार फंक्शन एथरू बारंबार आसुची टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम तो ये गोटे क्वेश्चन तुमको मिल जाए बायोडाइवर्सिटी रू हार हालत क्वेश्चन मिलो किसी डाउट नहीं तो आमको इकोसिस्टम रू क्वेश्चन मिलो बायोडाइवर्सिटी रू क्वेश्चन मिलो जमीक एलिफेंट होगा ये जहाँ बायोडाइवर्सिटी रू क्वेश्चन मिलो देन सपोज तुमको एनवायरनमेंट जो कॉन्सेप्ट अच्छी जमीक यूट्रोफिकेशन होगा अमुक होगा ये जो जिते कॉन्सेप्ट वाला पार्ट अच्छी फूड चेन होगला तो ये एरिया रू मध्य तुमको आउ सब इंपोर्टेंट एरिया है कन्वेंशन प्रोटोकॉल एक्ट्स ये जो अच्छी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी अच्छी तो से एरिया को तुम फोकस कर तो से तुमको क्वेश्चन मिल जाए टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट भी मध्य टिके देखीदेव तो एनवायरनमेंट एमती किसी एरिया देखीदे तुमको कवर हो ठीक अच्छे तो ये जदि आम कहवा तो सबू सब्जेक्ट तुम कौन कर डिवाइड करदे आम टाइम तो कौ सब्जेक्ट को केते टाइम देव तुम्हें तो फॉर एग्जांपल आम देखिले कि पॉलिटी वी नीड टू हाफ आम देखिले कि 7 to 9 days प्रथम फिनिश करा
देन लेट्स से तुम कहबो कि मु इकोनॉमिक्स देखिबी के केबो सपोज लेट्स से इकोनॉमिक्स तो ऑब्वियसली ये 7 days दियो ना देले हबनी लेट्स से जियोग्राफी ऑब्वियसली 7 days दियो कने ताठो अधिक पढ़ी हबो नै एग्जस्ट ही जबो देन हिस्ट्री जे है ना तो हिस्ट्री को जदि आम देखा ऑन एन एवरेज ये भी 7 days दियो तो देखा केते दिन पढ़ुची देन एनवायरनमेंट पार्ट को आस ये भी तुम 5 to 6 days हो ऑब्वियसली एनफ हो तो जदि आम देखा तो 35 days ये कवर हो 35 days हो तुम टोटाल केते हो 35 days विल बी कवर तो जदि आम देखा ऑन एन एवरेज 35 days ठीक अच्छे ता व्यतीत कौन रईंस एंड टेक्नोलोजी आउ कौन हिस्ट्री पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स जियोग्राफी आ किए जियोग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट साइंस टेक ओके देन करेंट अफेयर पार्ट को आस तो साइंस एंड टेक बेसी दवा दरकार नहीं 4 मतलब एते भी नहीं 5 दिन भी हेनी 4 days to 5 days करेंट अफेयर एटलिस्ट 10 days दियो तो ये जदि 15 days हो तो तुम होते 50 दैट वुड बी 50 days आमको कवर हो तो दैट मीन्स आम कवर कले 50 days तो 50 days तो ये गला आम पाखे अच्छी के 90 days टोटाल अच्छी के 90 days नाउ रेस्ट रहा तुम पाखे 40 days ये 40 days रे तुम कौन कर 20 days you need to revise that means ये जदि allocation कला परे 90 days we are having what 90 days तो 90 days को जितला में डिवाइड करूचे लेट्स से दिस वुड बी 50 days हमको जाउची now 50 days परे we are now having 40 days out of 40 days 20 days you must divide for the revision then रहिला तम पाखरे आउ 20 days in these 20 days you have to have some test किसी टेस्ट नहीं जाओ at least 10 days to 15 days ताठू अधिक नुह टेस्ट दे दो ना जहाँ टेस्ट देला 10 to 15 days ताको 5 days रे रिवाइज करिवो ताको कौन करा जबो रिवीजन हम कहना बिना रिवीजन रे किछि लाभ दबो नाही देन तमे 5 days रे जहाँ टेस्ट देलो सेथरु जहाँ तुमको वैल्यू एडिशन हैला रिवीजन करिवो देन गो टू एग्जाम तापर तमे एग्जाम खोजबो रियल एग्जाम देन मूव टू द रियल एग्जाम सो इट शुड बी द स्ट्रेटजी शुड बी लाइक दिस तो ये तापर तमे एग्जाम खोजबो लेट्स से नाउ वन थिंग आई विल मतलब आस्क एवरीवन कि बिफोर एग्जाम एग्जाम रो 5 दिन पूर्वरु बा 10 दिन पूर्वरु कौन सी भी टेस्ट दबो नहीं कौन सी मतलब प्रीलिम टेस्ट जो दियंती सेटा दबो नहीं ता द्वारा कौन दबोनी मतलब कहा को पसंद आसे पर कहा को न आसे पर इट्स ऑन यू बट माय परसेप्शन सेज कि बिफोर एग्जाम 10 days पूर्वरु कौन सी टेस्ट वगैरह दबा कथा नो टेस्ट बिफोर द 10 days हम कहवा नो टेस्ट तुम कह कौन सी प्रीलिम टेस्ट तुम दबो नहीं एथि पई लेट्स से कौन सी एग्जाम गोटे खराब हे गेला दैट विल इंपैक्ट ऑन ओवरऑल कॉन्फिडेंस जदि कौन सी टेस्ट गोटे तुम दौच लेट्स से इकोनॉमिक्स रे देइतलो खराब हे गेला 10 मार्क 20 मार्क जहाँ भी आसी सो दैट विल इंपैक्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस ऊपर इंपैक्ट तुमको लगे मत ताले किछि आसुनी तो ये इंपैक्ट को ना सेथि पे मु कहली आगुरु खत्म कर दियो टेस्ट को देन रिवीजन कर दियो तो रिवीजन कला परे तुमको टिके कॉन्फिडेंस आसी जीवो फाइन so don't go for any kind of test before exam 10 days then better to have the revision quick revision एबे जो आम पाखरे देखो ये जो 5 days इदा तुम टेस्ट को रिवीजन करिवो न हले तमरो जहां अछि सिलेबस को रिवीजन करिवो एटा कोन करिवो सिलेबस अर्थात जो पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह पढिछो एई 5 दिन रे आउ थरे रिवाइज करिवो ताकि तमर कॉन्फिडेंस बूस्ट हे जिवो तुमको लागो हां मु एबे पढि के आसी छी बुझ परछ नहीं तो ये जो एठी जितले तुम रिवीजन करिवो ये 5 दिन रे जो रिवीजन करिवो एठी गोटिए दिन रे दीटा बुक को करिया पड़े मतलब 2 सब्जेक्ट वन डे एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट गोटे दिन हिस्ट्री पॉलिटी एमती किंतु टॉपर्स कोन करंती जानि छ गोटे दिन रे सब बुक को रिवीजन करंती बिफोर वन डे बिफोर
तुम देखो किसी टॉपर्स स्ट्रैटेजी 1 डे बिफोर सपोज 8 घंटा अच्छी काली एग्जाम आज 8 घंटे 8टा टॉपिक सर फास्ट पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स प्रत्येक सब्जेक्ट में घंटाए घंटाए देवे ताकि पूर्व दिन पूरा होल टॉपिक कवर ताकि गोटे ओवरऑल तुमको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि मुझे सब पढ़ी आसी तो ये तांकर टॉपर्स स्ट्रैटेजी थाए मुझे से स्ट्रैटेजी को जाऊनी ये पता नहीं किए करें कि नहीं बट जदि कर दैट वुड बी द बेस्ट वन ताकू केमती डिवाइड करा जाए इधर 1.5 अनुसार डिवाइड कर है ना 1.5 ता पूर्व दिन 1.5 आवर प्रत्येक सब्जेक्ट पे 1.5 तो एमती करके तुम डिवाइड करके खत्म कर पार तो एमती भी लास्ट मोमेंट जो रिवीजन करती बट ये 1 आवर रिवीजन करने यू नीड टू हैव योर ओन नोट निजर जदि नोट न से केमती सर घंटाए अच्छा जड़े घंटाए पॉलिटी केमती सार ता पूर्व दिन सारी पार कि तो फॉर दैट यू नीड टू हैव ओन नोट निज नोट बिना ताकू रिवीजन करहब ना तो जदि तुम निज नोट बन के रखुच बा ये एठी पढ़ला बेले लेट्स से हिस्ट्री 7 दिन पढ़ुच नोट बन देच ताल सेठी तुमको रिवीजन करने इजी हम ठीक अच्छे तो ये मतलब जनरल कैलकुलेशन आम गोटे करके देखले कि आज जदि तुम रिगरियसली पढ़ो ताले ये प्लान तुम रिगरियस ताकि 90 डेज रे सिलेबस को कवर कर पारिबो एंड यू कैन मूव टू द एग्जाम अदरवाइज डिफिकल्ट हो फिर भी जदि तुम आज रिलैक्स हो जाओ दैट वुड बी डिफिकल्ट ठीक अच्छे ना एथरे आउ जार जहाँ पचारे अच्छे कह मत करेंट अफेयर पार्ट को केमती पढ़ो ताकू भी सेमती सेगमेंट करदेव इधर कंपाइलेशन पढ़ी दियो एबे टाइम अच्छी एंड तो बेस्ट एरिया को फोकस कर करेंट अफेयर बेस्ट एरिया मुझे से पॉलिटी हो पारे सब सेक्शन रो बेस्ट 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 को आइडेंटिफाई कर और ताकू पढ़ डन अच्छा एबे किसी PYQs मु देखौछि तुम मानकू लेट्स से किसी PYQs हम देखिबा एंड देखिबा कि बेस्ट और जो ओस्ट कांसेप्ट सेठी अप्लाई होछि कि नहीं जो कांसेप्ट मु कहली तुमको बेस्ट ओस्ट एंड आ गोटे कौन कही करेंट आ गोटे कौन करेंट अफेयर पार्ट सो नाउ लेट मूव थ्रू दिस वन whether that's working for us or not सर तीसरा पण स्ट्रैटेजी किछि कोनतो सी सेट देखि देबा लेट्स से दिस वन OPSC प्रीलिम्स क्वेश्चन देखा OPSC प्रीलिम्स क्वेश्चंस रो कंपाइलेशन पूरा अच्छी हम पाखरे तो ये देख लेट्स से मु तुमको कहूली ज्योग्राफी कथा ये ज्योग्राफी रो MCQ देख से कह व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इशू इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डिस्कसिंग द कांसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग अच्छा मु तुमको कहती आउट पूर्व कि बेस्ट एरिया विल बी आस्क्ड ना बेस्ट एरिया इज व्हाट ज्योग्राफी जिते जियोमॉर्फोलॉजी को तो सब सब्जेक्ट कौन सेगमेंट अच्छे लेट्स से जियोमॉर्फोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी ओशनोग्राफी एनवायरमेंटल तो जिते मत जियोमॉर्फोलॉजी रो क्वेश्चन पचारे अच्छी और ओशन रू ओशन रिलेटेड गोटे क्वेश्चन पचारि ओब्वियसली ओशन सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज ए डोमिनेंट एरिया और दैट इज द बेस्ट एरिया जोटा कि मैक्सिमम पिला पढ़ती ना केवल से माने भावते एटा ऑप्शनल बोली बट जीएस रे देखो प्रीलिम्स रो क्वेश्चन आसी 2021-22 OPSC प्रीलिम्स रो क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन को जिते आम देखा तो सॉल्व करो तुम मैंने आंसर तो सॉल्यूशन दिया ही ना ये देख ये कही द वॉल्केनिक एक्टिविटीज अलोंग द मिड ओशनिक रीज distribution of fossil fuels in the different continents, the streams of the normal and the rivers magnetic fields are observed, then the age of the rock from the ocean floor. तो ये देखो कि से कही इज नॉट टेकन ओके ना जदि ये कॉन्सेप्ट किए पढ़ी थिबो अच्छा ये ना एनीवन को ये कौन पई आंसर हमर एटा हबो नाही एनीवन के कहि परिबो
व्हाई बी वुड नॉट बी आंसर से कहते ना नॉट टेकन इट्स व्हाट नॉट टेकन कौन पई एनीवन रीजन कौन आंसर तो दिखाई तुमको अच्छा ये क्वेश्चन कहीं पचरा जाए लॉजिक बुझी पाउछ मु कहि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एरिया दैट इज व्हाई दे विल आस्क ना देखो सी फ्लो स्प्रेडिंग मु कांसेप्ट तो पढ़ाई पे जाऊनी बिकॉज जो मैंने पढ़ी क्लासेस रे एबे भी मु पढ़ाई है ना बेसिक बैच रे तो ऑप्शनल भी तो ऑब्वियसली पढ़ाई ज्योग्राफी तो सी फ्लो स्प्रेडिंग ऑब्वियसली सी फ्लो रे कुआडू आसीबो फॉसिल को मते गोटे सिंपल कांसेप्ट सी फ्लोर स्प्रेडिंग होची वोल्केनिक एरप्शन कौन सी जगह रे जितरा वोल्केनिक एरप्शन होची फॉसिल फ्यूल कुआडू आसीबो फॉसिल फ्यूल्स विल कम्स फ्रॉम द अपर पार्ट अर्थात सरफेस ऊपर फॉसिल फ्यूल्स रहिबो तो अर्थ भीतर केमती फॉसिल फ्यूल ता आसीबो हेई परिबोनी दैट मींस आमे फॉसिल फ्यूल को एठी डिफरेंट कॉन्टिनेंट रे स्टडी कले किछि जणा पड़बेनी कॉन्टिनेंट वेदर द सी फ्लोर इज स्प्रेडिंग और नॉट बेटर टू स्टडी जदि से माग्मा और आई वुड से द बेटर टू लाभा रो स्टडी हबो से ओके एंड ता द्वारा कोन आसीबो एज ऑफ द रॉक ऑब्वियसली एज ऑफ द रॉक काना एथरे कोन थाय मिड ओशनिक रीज रे मु कहितली देयर वुड बी डिफरेंट स्ट्राइपिंग ऑफ रॉक ए बी so there would be alternative band of rock a b एमती थिबो अर्थात ए हला लेटेस्ट बी हला ओल्ड तो दैट वुड बी स्ट्राइप ऑफ रॉक को पढ़ा जाए रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड जाको कौन कहा जाए पालियो मैग्नेटिज्म जाको हम कौन को पालियो मैग्नेटिज्म तो ये पालियो मैग्नेटिज्म कथा एथरे से जिगर करिछि दैट मींस एटा करेक्ट वोल्केनिक एक्टिविटीज तो हबो ये दैट मींस करेक्ट ठीक अछि तो एज ऑब्वियसली एज को तो नबा तो दिस वुड बी द आंसर तो देखिए ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन से पचारि चंती तो एमिति केही तुक्का को मारिले बाजिबो नाही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बट ध्यान से पढ़िबा को से नॉट कहिछि तो अच्छा ये देखो तमे सी फ्लोर स्प्रेड होउची वोल्केनिक एरप्शन मूव करूची ऑब्वियसली ओल्ड पार्ट एठी देखा जो न्यू पार्ट एठी देखा जो आको कोन कहू हमें दिस इज द कौन कंस्ट्रक्टिव जोन दिस वन इज डिस्ट्रक्टिव जोन है ना जहाँ को भी सबडक्शन जोन कहा जाए ये है डिस्ट्रक्टिव बा आमे कन्वर्जेंट कहवा हियर इज द डाइवर्जेंट आपको डाइवर्जेंट मध्य कहवा तो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ाई तो तुमर भी क्लासेस रे खबर देन देखो द स्ट्रीम्स व्हिच डोंट फॉलो द रीजनल स्लोप ये क्वेश्चन भी पढ़ा जाई ये क्वेश्चन भी मु क्लासेस रे पढ़ाई को अरे कौन है एटा भी कहि परिबनी मु कहितली दीटा थाए गोटे सबसिक्वेंट गोटे कौन थाए दैट मीन्स सेक्वेंट आ गोटे इनसेक्वेंट सेक्वेंट कहले दोस रिवर फॉलो द स्लोप सेक्वेंट रिवर को साधारणतः दी भाग रे भाग करा जाए गोटे हला सेक्वेंट गोटे हला इनसेक्वेंट सेक्वेंट अर्थात जे स्लोप को फॉलो करके मूव करूची इनसेक्वेंट डजंट हैव एनी रिलेशन विद द स्लोप तेणु करिकी ताले जदी जे से कहिछि ना एठी डज नॉट फॉलो ताले कौन हो कह एवं आंसर तो कहीदेली कौन इनसेक्वेंट सेक्वेंट है फॉलो कर सपोज भाव एमती हिमालय गंगा एमती जाऊँगी ना ताले कौन कहूँ स्लोप को फॉलो करुच्ची भाव एपटू गोटे रिवर एमती आसूची तार स्लोप सहित तो किसी नवा दवा ना अच्छे कि ताले आम कौन कहवा इनसेक्वेंट आपको कौन कहवा सेक्वेंट कहीं सेक्वेंट कौटी सेक्वेंट हो ठीक अच्छे आपको सबसेक्वेंट करदे कॉन्सिक्वेंट भी कर दियो कि आराम से हो तो ये हमको देखे दैट मीन्स आंसर तुमको दिखाई कौन इनसेक्वेंट बट से देखो से केते ऑप्शन देछि सबसेक्वेंट देछि रेसिक्वेंट देछि कॉन्सिक्वेंट ये जो ना ये तमर ये सब कहार पार्ट दे आर द सेक्वेंट रो पार्ट ये समस्त को गोटे जगह आम पुट करबे ये तीनटा ताको कहा जाए सेक्वेंट दैट वुड बी सेक्वेंट ए माने सेक्वेंट रो टाइप इनसेक्वेंट रो टाइप कौन जेमति कि एंटीसीडेंट एंड सुपर इम्पोज्ड आर कौन एंटीसीडेंट एंड सुपर इम्पोज्ड आर दी प्रकार टाइप अच्छी एंटीसीडेंट एंड सुपर इम्पोज्ड ऑब्वियसली जे ज्योग्राफी पढ़ना डिफिकल्ट लगे मु कही बेस्ट पार्ट विल आस्क टू यू बिकॉज ये एग्जाम ही डिफिकल्ट एग्जाम तो ये मतलब इजी तो नहीं और ये क्वेश्चन किए करि परिबो जी यूपीएससी पे पढ़ी बुझे
तो एसएससी स्टैंडर्ड रो पढ़ी कि आगो से 2014-15 रे ओपीएससी होतला सही पैटर्न रे पढ़िले हबो ही नाही क्वेश्चन मु कहि देछि तापे किसी चांस ही नहीं नो वे टू क्वालिफाई दिस एग्जाम प्रीलिम्स सही परिबन सो यू नीड टू गो थ्रू द टफ पार्ट तो ये हमें देखि देले कि हां एठी तमे देखो हियर इज हाउ द स्ट्रीम्स आर सबसिक्वेंट कॉन्सिक्वेंट रेसिक्वेंट ए तो तुमको पढ़ा भी हबो वेबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन किए करिवो according to Weber the most important factor for the locating industry देख ये जदि वेबर कथा साधारणतः एटा ऑप्शनल रे पढ़ा जाए तो जीएस पिला करि परिबो नाही टू बी ऑनेस्ट तो डिफिकल्ट क्वेश्चन थिला ना ओ वेबर आमे कहबा लीस्ट कॉस्ट आंकर थ्योरी होची कोन ना लीस्ट कॉस्ट थ्योरी जाको कोन कहै छै लीस्ट कॉस्ट थ्योरी वेबर दे देइथिले तम अच्छा एबे तुमको सर वेबर कहीं पचारले आउ किछि पचारले नी वेबर कहीं पचारले मु कहितले बेस्ट काना इंडस्ट्री को लोकेशन रो सबटु बेस्ट थ्योरी होची वेबर थ्योरी तो सेति भी वेबर ही पचारिबो ना रादर देन बाबो मते कोहा जाईची कि सर यू हैव टू मेक ए क्वेश्चन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल थ्योरीज रिलेटेड टू द ज्योग्राफी सो देयर कुड बी स्मिथ थ्योरी देयर कुड बी लॉस थ्योरी देयर कुड बी वेबर थ्योरी देयर कुड बी अनदर थ्योरी हे परि 4 5 टा 6 टा थ्योरी 8 टा 10 टा थिबो जाबी सबटु बेस्ट बा वेबर से बेस्ट टा पचरा जाईची तुमको रादर देन कि छोटो मोटो सब स्मिथ रा पचार जबा बुझिबो ना ये सब नहीं तुमको बेस्ट पचरा जबो मु सेति में स्टार्टिंग रु कहिची स्ट्रेटजी बट यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट सेटा कोन से बेस्ट टा कोन मु कहिबी ओडिसा रे जेते सैंक्चुरी अछि सबटु बेस्ट सैंक्चुरी को मते एनीवन बेस्ट सैंक्चुरी कोन एबे तो बेस्ट रो टेक्निक बुझि पारिबो मते सैंक्चुरी रो गोटे क्वेश्चन बनेयर अछि now you have to pick the best sanctuary कौन चंदका पचारिबो ना कोन चंदका इज नॉट बेस्ट एनीवन कोन हैला ना एबे भी बुझि पारनो सिमलीपल सैंक्चुरी नो को मु तो टेक्निक भी कहि देली ना कि यू हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट वन अच्छा ताले बेस्ट कोन हे परिबो लेट्स से the sanctuary could be that means best when I say best in the sense कौन बुझिला बेस्ट क्वेश्चन मु कहली जदि मते गोटे sanctuary रु क्वेश्चन पचारा जीवो तुमको से काहे की पचारेले मते को कि कोन बालूखंड sanctuary काहे पचारले ओपीएससी पचारथला बालूखंड काहे पचारले प्रथम कथा बालूखंड रे ब्लैक बक अछि एंड ब्लैक बक ओडिसा रे गोटे ही जगह रे सेटा होची बालूखंड तो सबटु बेस्ट कोन से ना बुझी पारछ नहीं ताले ब्लैक बक तुमको डेडिकेटेड सैंक्चुरी ओडिसा रे होची ब्लैक बक दैट इज व्हाई दे आस्क्ड यू ब्लैक बक सेठी कने ओडिसा रे बाकी कोठी सैंक्चुरी नहीं ब्लैक बक पई तो ओनली एक्सक्लूसिव सेमिति एलिफेंट बहुत अछि तो एलिफेंट रु मु काहे पचारिबी बुझी पारछ मते बेस्ट रा दरकार आउ जदि कहबो मु ठीक अछि घरियाल पचार देबा सात कोसिया घरियाल तो सेटा पचार बिकॉज़ दैट इज आल्सो यूनिक तो सही भलिया जिनस को पचारिबा जोटा यूनिक मु कहली बेस्ट कांसेप्ट तो एठी भी मु प्रूफ कर देली ये जो क्वेश्चन ज्योग्राफी रे आसीची ताको भी प्रूफ कली कि दिस वन इज द बेस्ट दैट इज व्हाई दे आस्क दिस क्वेश्चन आ ये फार्मूला जे बुझी जीवो मु कहली तुमको हर हालत रे एग्जाम रे आ बाहर क्वेश्चन नाही आ एटा प्रूफ एटा खाली इतरे ने बहुत तरह प्रूफ करिछि मु यूपीएससी रे भी हला तुम देखियो यूपीएससी रे भी सब जहा मु क्लास रे भी बहुत तरह कहिछि बट मेन हला ताको आइडेंटिफाई करबा कि वेदर दिस वन इज बेस्ट और नॉट so that is the art will be there तो जेहेतु एठी भाबो मु जदी एटा को काटी के लिखि थांती के लीस्ट कॉस्ट व्हाट वुड बी ऑब्जेक्टिव कोन ना लीस्ट एठी से कहै छी अकॉर्डिंग टू द वेबर द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर लोकेटिंग इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट because if somebody will be able to minimize the transportation cost can our objective कोन थला लीस्ट कॉस्ट लोकेशन कोन रहबो ना लीस्ट कॉस्ट लोकेशन एबे लीस्ट कॉस्ट लोकेशन केमती हेबो दैट कुड बी बहुत सारा फैक्टर्स रे हे पारे है ना तो लीस्ट कॉस्ट लोकेशन थिला तांकर ऑब्जेक्टिव सेति पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को से बेसी सिग्निफिकेंस देइथिले तो ये क्वेश्चन जे हम देखिबो थिला तो नेक्स्ट क्वेश्चन जदी आसीबा ओके ये गोटे क्वेश्चन देइछि देखो मु आंसर टाको हाइड करके रखुची डन ये कहि देखो बर्सन मियांडरिंग सैडल स्टाल्क काली पढ़ी थी
काली कोस्टल लैंडफॉर्म रे मु एटा पढ़ाई ना पढ़ाई काली ही पढ़ाई इवनिंग रे ताले ओब्वियसली को मैच करी जो 1 को कोस्टल लैंडफॉर्म तो ये मैच करके देखि दियो जोटा पड़िबो तुमको ना मियांडर कहा सहित फ्लूवियल सहित एटा भी पढ़ाई तो हे गला ना तमरो सो इट वुड बी लाइक दिस वन सो दिस वुड बी लाइक खत्म एबे पढ़ाई तो दैट मीन्स याकू जदि तमे कहबो कि सर प्रीलिम क्लास रे हमकु पूरा ये सब पढ़ाई दियंतु असंभव हो जिवो बिकॉज दे आर आस्किंग फ्रॉम द डीपर पार्ट ऑफ ज्योग्राफी तेणु करके ये सबू भाव मते पूरा होल कोस्टल टोपोग्राफी पढ़िया पड़ो होल ग्लेशियल टोपोग्राफी पढ़िया पड़ो होल एलियन पढ़िया पड़ो होल फ्लूवियल पढ़िया पड़ो होल कास्ट टोपोग्राफी पढ़िया पड़ो होल पेरीग्लेशियल टोपोग्राफी पढ़िया पड़ो देन यू वुड बी इन ए स्टेट टू आंसर दिस वन तो दिस इज नॉट मतलब एते भी इजी से मैंने पचार ना सो हियर यू कैन सी ओके तो मियांडर वगैरह तो पढ़ाई ऑक्सबो लेक तो पढ़ाई ये देखो काली ही देखुली आर्क स्टार्क केप स्टम्प बहुत सारा पढ़ाई टोम्बोलो कही स्प्लिट कही हुक कही है ना ऑफशोर बार कथा काली आम डिस्कस करते बीचेस डिफरेंट टाइप ऑफ देन आक्रिशन बीच कथा कहूली इरोजनल बीच कथा कहूली तो बहुत सारा काली आम डिस्कस करते कि व्हाट वुड बी द ता बाहर आसबार चांसेस बहुत ही कम मुझे कहूनी कि आसबनी बट चांसेस बहुत कम बट दैट मज जमी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अर्बन एरिया सोन बाय ये ताको देइछि कि डॉट्स एंड स्पीयर तुमको देखा जब तो एमती ये देख लेक रु पचारि अच्छा देख सब भल लेक किए चिलिका ऑप्शन रे दिया तो बेस्ट को ऑप्शन रे दिया अच्छा लोकतक सब बेस्ट के नहीं दैट इज द यूनिक लेक इन द वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग लेक से ऑप्शन रे पुट कराई एबे देख मु जहाँ कही बेस्ट सब बेस्ट दिया आंसर रे ऑप्शन रे केमिति ना दिस वन इज बेस्ट this one is best this one is best this one is best in their different segment जेतले आमे कहूचे कनवार लेक द लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक इन इंडिया तो भाबो ऑक्सबो लेक जेमती अंशुपाट ऑक्सबो तो मते जदि ऑक्सबो लेक रु गोटे क्वेश्चन सबटु बेस्ट पचारिबि ना सबटु बेस्ट हला कनवार लेक बिहार बुझ परछन तो मु आरो बेस्ट अच्छा लोकतक ये तो यूनिक लेक आको तो 1000 थर क्वेश्चन पचारछि ये तो 1000 थर क्वेश्चन आछि कोन पई यूनिक दी जन ये सब लार्जेस्ट ये हूँ फ्लोटिंग लेक दीपुर बिल तो सब न्यूज रे थाए आसाम दीपुर बिल तो होगला आंसर मिलगला तुमको ये तो कहीदेली बिहार बोली ये तो जानिच ये तो कहीदेली सरीगला आ कौन अच्छी मणिपुर खत्म तो दैट मीन्स हाँ किबुलमजो सो दिस वन इज व्हाट मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम एनवायरनमेंट को लिंक करके ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट इज लिंक्ड दीपुर बिल जदि तुम न पढ़ो ताले तुम भूल ना मोर भूल जड़े जदि पढ़ुची वेटलैंड तो दीपुर बिल कौन पढ़ो वेटलैंड रे सो यू नीड टू गो थ्रू द वेटलैंड बेस्ट सो दिस वन वेटलैंड दिस वन ये सब जाक वेटलैंड इधर वेटलैंड रे कवर करिवो और तुम एनवायरनमेंट कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी रे लिंक करके तुम पढ़ो तो ये देख क्वेश्चन आराम से क्वेश्चन होची एमती ना कि क्वेश्चन जहाँ क्लास रे पढ़ाई देख हाँ तुम कह कि ना सर पढ़ाई नहीं जहाँ देखो बर्तमान जो क्वेश्चन सब देखली ओब्वियसली जो वेबर वाला जीएस रे नाही से पढ़ाई तेणु दैट्स ए एक्सेप्शनल वेबर वाला क्या वेबरटा से ऑप्शनल पिला ही करें तुम मैंने ना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी उपर क्वेश्चन देछि बुझे ना तो ये क्वेश्चन ऑप्शनल वाला ऑप्शनल पिला ही करें जीएस पिला करें ना क्या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल जो तो या जीएस रे किए पठेबो कहीं तो पढ़ेबनी तो दैट वुड बी ऑप्शनल तेणु ये डिफिकल्ट पार्ट गोटे ये देख which of the stages of demographic transition the highest population growth is observed okay now demographic transition theory ना जी पढ़ी थी वो तो let's say तार theory केमती थाए so that would be the demographic transition theory है ना तो demographic transition theory एमती फिगर थाए डन फिगर वुड बी देयर तो ये लेट्स से तो फिगर एमती थो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी तो ये हूँ हाई अच्छा जदि एटा को आम देखा ठीक अच्छे तो गैप कौटी बढ़ुची तो गैप जो आमको अधिक रहिबो तो सेकेंड स्टेज रे कौन हुए जे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ग्रोथ जो कौन सी कंट्री होता है जमती इंडिया कथा नहीं जाओ पॉपुलेशन ग्रोथ
तो सब मन रख डेमोग्राफिक ट्रांजिशन रो मैक्सिमम पिला किंतु फास्ट स्टेज लिखिचंती कि फास्ट लिखिचंती कि थर्ड लिखिचंती फोर्थ को तो जाई हबो नाही मैक्सिमम एटा ही आंसर करथिले बट सेकंड स्टेज एथि पई हबो देखो बार्थ रेट बा पॉपुलेशन ग्रो केतल करिवो जेतल बार्थ रेट हाई थिबो डेथ रेट कमी जिवो बार्थ रेट हाई अछि डेथ रेट कमी गला जदि हाई बार्थ रेट हाई डेथ रेट ताले पॉपुलेशन तो स्टैग्नेंट हो जिवो मतलब जेतिकी जन्म हेले सेतिकी मरि गले ताले कोन स्टैग्नेंट हो गला तो आगे जदि हमको जदि हाई पॉपुलेशन दरकार ताले बार्थ रेट हाई रहिबो डेथ रेट कमी जिवो जेमति कि इंडिया रे हिची 1970s तो दैट मींस इन इंडिया केस रे हम देखबा सो 1970s 1980s 80 पॉपुलेशन मतलब स्काई रॉकेट हो गला कारण एठी मेडिकल फैसिलिटीज आसी गला बार्थ रेट तो हाई अच्छी से आपको कह पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इंडिया रे ए स्टेज रे कहीं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है कारण बार्थ रेट हाई थिला से गोटे ओबियसली तुम भाव यही टाइम रे जी भी जन्म होती भाई भौणी कई जो मन कि बापा माँ जे थे जन्म होती यही टाइम रे 1970s रे से निहाती 4-5 जन भाई भौणी थे डन तो ये कौन है बार्थ रेट हाई अच्छी डेथ रेट कमिगला बिकज ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी जहाँ को सेकेंड स्टेज रो कॉन्सेप्ट तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऑप्शनल रू पिक करके पचार तो तेणु करके सब सब्जेक्ट किसी किसी ये कंट्रीज लार्जेस्ट ये तो समस्ते जानी कौन बुझे मु तो कही कि सब चाइना को आगे रखियो मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सब आगे रखियो केतेटा सेक्टर रे हमें हाँ कह डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में से जो पांचटा स्टेज अछि टिके तळो स्क्रोल करी स्क्रीनशॉट ले तो ये जो 5टा स्टेज रहा देख मु तुमको स्टेज 1 कही ये कौन कही देख मु कौन कही कि सेकेंड स्टेज देयर वुड बी शार्प डिक्लाइन इन डेथ रेट मु कही डेथ रेट कम कौन पई ना कॉजिंग ये कौन पई लिखिनी से कॉजिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ रैपिडली कौन पई कमिबो देख डेथ रेट कमिबार दीटा रीजन साधारणतः तुमको लगे खाली मेडिकल ना न्यूट्रिशनल वैल्यू अजल जने जदि भलो खाइब रोग कहीं हम ताको ताहले जदि भलो जने खाइब रोग ऑटोमेटिकली कमी जिवो ताले तमे एटा प्रिवेंशन आमे सबले क्यूरेटिव को कहीं जिबा के रोग हेले ही भलो करिबा तो आगे प्रिवेंशन को तेणु मेडिकल द्वारा भी हो पारे और तार डायट्री रे आमे कहबा से हेल्दी खाउची मतलब बुझिबा तेणु करी दीटा एंगल रो हो पारे तो दैट वुड बी देयर तो ये राइस ये तो समस्त जानिच अच्छा मु कहितली बेस्ट तो राइस रे बेस्ट की चाइना ना सबुठ अधिक करूची आ कोन तुमको पचारियो कि नामीबिया केते करूची ओब्वियसली ते भी बुझी पड़छ तो क्वेश्चन केमती आसुची बेस्ट एरिया रो ए देखो मैपिंग क्वेश्चन अच्छा आकु तुम मैच करो ये क्वेश्चन केते थरा कहिची धूप गॉड ये गोटे एमती गोटे भी नहीं जोटा पढ़ाई 1000 थरा को हाउची डोडा बेटा कहारो नीलगिरी अच्छा ये हाँ डोडा बेटा नीलगिरी ठीक अच्छे तापर धूप गॉड कहार सातपुड़ा गुरु शिखर अच्छा ताले मते कह गुडविल पिक कहार ताले तो तुम पढ़ीच सबू ना आंसर देखिए कहीदेल मते ताले एबे कह गुडविल पिक कहार सेटा कहार बिंधिया कार बिंधियार तो एबे भाव जदि यही क्वेश्चन को देखिकी तुम पढ़ुच प्रिपेयर करुच कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी सारा पिक पढ़ी जाओ बाकी सारा पिक पढ़ी जाओ ना ये पुणी रिपीट हम ना कौन क्वेश्चन क्वेश्चन तो रिपीट हम देन यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम द डिफरेंट ताले नेक्स्ट टाइम तुम लेट्स से तुमको कह कि हाँ सातपुड़ार मतलब बिंधियार पढ़ी जाओ शिवालिक पढ़ी जाओ ग्रेटर हिमालय पढ़ी जाओ मिडिल हिमालय पढ़ी जाओ काराकोरम पढ़ी जाओ लद्दाख पढ़ी जाओ ये सब पढ़ी जाओ करेक्ट चलो तो ये देयर वुड बी देयर क्वेश्चंस एठी सब पिक दिया है देख जेते सब माउंटेन्स तार पिक अच्छा ये ट्राइब्स पढ़ी थी ये तो आंसर अच्छी देखिए कहीदेव हौ बुझिपार कि नहीं ताले मते कह आंडमान निकोबर आउ को ट्राइब्स देखा जाए
मु कही समपेन देखा जरुआ देखा है ना, ओंग देखा, एंडामानी देखा, निकोबरी देखा, सेंटिलीज देखा, नॉर्थ सेंटिलीज, साउथ सेंटिलीज। पुणी मुझे कही करेन्ट अफेयर के दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम गोटे ट्राइब भोट देइचंती, किए से समपेन ट्राइब। एक कथा भी करेन्ट अफेयर क्लासेस रे कही कि फर्स्ट टाइम अंडमान निकोबर कौन से ट्राइब जनरल इलेक्शन रे भोट देइची समपेन ट्राइब। तो ऑब्वियसली ताले सबू ट्राइब पढ़िबो तमे, जदि अंडमान निकोबर पचरा जाइची देन यू हैव टू आस्क सबू ट्राइब्स को पढ़ी जाओ। एमानकर रेसेस भी मु कहितली कि को टाइप रो। हां एबे न्यूज रे अछि जाति प्रथा गोटे राजस्थान रो गोटे भील ट्राइब। हां सेठी भील बाहुची लार्जेस्ट ट्राइब इंडिया रो। ताको एनएचआरसी देइची सेटा बंद करिया पे जाति प्रथा सिस्टम ताकर। बस सेटा भी पढ़ नाता प्रथा जा भी हो जा जदि ताको पूरा पढ़। भील कोठी कोठी अछि, राजस्थान है गेला, गुजरात है गेला, मध्य प्रदेश है गेला, महाराष्ट्र है गेला। भील लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया, तो भील को पढ़ी दियो। तो ये जरुआ सेमती सपोज तमे देखि देला, एडी देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अपलासियन माउंटेन। ये पढ़ाई जे ना पढ़ाई आपको जे न कहि परबो मो किछि कहि परबी नै, मो पाखरे वर्ड नै। कौन आंसर कौन? ऑप्शन माउंट मिचेल, माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्ब्रूस, देन डामा भांट। ये कोठी पढ़ाई थिला? ये नॉर्थ अमेरिका मैपिंग रे पढ़ाई थिला। अच्छा जदि ठीक अछि एटा जदि ताले तो नॉर्थ अमेरिका सब गुडा जानि छ। हो मते ताले को रॉकीज रो हाईएस्ट पीक कोन? रॉकीज रो हाईएस्ट पीक कोन? एनीवन? माउंट किए? कौन है? एल्बर्ट। किए? माउंट एल्बर्ट। अच्छा ताले हाईएस्ट पीक, ओवरऑल हाईएस्ट पीक किए नॉर्थ अमेरिका? डेनाली। कौन आसबो? कोठी अछि? अलास्का रेंज रे, अलास्का रेंज रे माउंट डेनाली। तो बस रिवीजन न कले एमती हेबो आ कोन धुंधला देखा जिवो। रिवीजन न कले धुंधला देखा जिवो, तापर टोटल देखा जिवोनी। आगे धुंधला देखा जिवो ना, तापर टोटल देखा जिवोनी। सेटा न हबार रीजन होची वर्खोयांग्स। ए पढ़ा हिचे ना हेनी? वर्खोयांग्स पढ़ा हिचे ना, कहितली साइबेरिया रीजन देखा जे। तो ये देची कि ये देखो साइबेरिया को मु तीन भाग रे भाग करथली, वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट टोटल। तो से कहिची कि कोठी लोएस्ट टेम्परेचर देखा जे साधारणतः वैलीज रे देखा जिवो या ना। ये सब रिवर अछि। एटा टिके फैक्चुअल टिके क्वेश्चन थिला कंपैरेटिवली। तो ये तुम देखि परिवो या ना वैलीज रे तुमको देखा जिवो। एटा गोटे देख रिवर वैली। आर टेक्निक हैला कोन कहलो? सपोज मु भी एटा पढ़ाई नथिल टू बी ऑनेस्ट, एडमिट करिवि आगुरु। बट आर टेक्निक हैला रिवर वैली जोठी थिबो ताकू पिक कर दबो। जेमति कि मु कहूची जेएनके रे, जेएनके रो सबटु कोल्डेस्ट एरिया कोन? सियाचिन ग्लेशियर को छाड़ दियो। द्रास वैली। ताले सेठी हम लिखुचे कोन? द्रास वैली अर्थात रिवर जाउची, वैली अर्थात रिवर जाउची ना। बुझी पानो टेक्निक? तो जेते बेले एई भला क्वेश्चन पचरो वैली की खोजिबो, जोठी वैली मिलियो सेटा आंसर हो। ये तो पढ़, ये तो जानिचो बेसिक क्वेश्चन प्लैनेट्स थ्रू। मार्स तो जानिचो सटर्न, यूरानस तो मैच कर दियो। कार रिंग रोची, कार रिंग नहीं, बस हे जिवो ना हबनी। तो मार्स कोन हे जिवो? रेड हे गेला। विनस कोन हे जिवो? कोन हे जिवो? बेल्ट। सटर्न तो जानिचो रिंग, तो दीटा रे तो बाहर जिवो। पूरा प्लैनेट सिस्टम पढ़ी देबो। ये देखो यूरानस, यूरानस ऊपर में पढ़ीचे भी। यूरानस नेपच्यून डिबेट जहाँ ही कि वेदर प्लैनेट सिस्टम रे माने रहिबो कि नाही। तो सी आम भी डिबेट पढ़ी कि प्लैनेट रो पार्ट हबो कि नाही। ओके ना एथ्रु मते को
तो तुमको कौन मतलब ये भी जना पड़ो। लेट्स से ये वाला क्वेश्चन भी देख ये करेंट अफेयर क्वेश्चन रू पचार जमती कि दैट इज व्हाट यूजिन सी करेंट अफेयर पचार जियोग्राफी मुझे तुमको कहली करेंट अफेयर क्वेश्चन पचार यूक्रेन वार चलती से यूजिन सी पचारदेला कौटी दैट इज द ब्लैक सी पार्ट। तो एमती क्वेश्चन तुमको आसो तो से कौन कर नाटो कहीकि पचार ये पचारा पुणी देख दैट इज बाटा गायिका क्रेटार। तो ये अगेन रशिया पार्ट रे तुम देखो कि रशिया पार्ट रे अच्छी तेणुक ये करेंट अफेयर पार्ट को लेकिन पुणी से करेंट अफेयर को आसीगले। तो सेम सब्जेक्ट रो एटा करेंट अफेयर पार्ट एस्किमोज कोठी देखा जाए ये तुमको आसीजो जमती ये प्रोजेक्ट वगैरह रिवर वैली प्रोजेक्ट भी आसीजो। तो सबुठ भल जहाँ अच्छी ताकू से पचारदेले तेणुक से सब्जेक्ट रो ही तुमको पचरा सबुठ भल पासेस पचार पुणी पासेस भी देती से क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओपीएससी रो। तो पासेस रो क्वेश्चन आसूची दैट मीन्स डायवर्सिटी ऑफ क्वेश्चन हमको देखा ये तो जानी ये जो हम पढ़ते पासेस गुड़ा है ना दीपर पास तो जानी अरुणाचल प्रदेश रे अघिल पास कोठी देखा लद्दाख है ना। तो ये से कोटा भूल आम बा उत्तराखंड कही उत्तराखंड टेक्निक कौन कही मन रखापी लिपु नीति मानिकी चल ना मन पड़ूनी ए लिपुला नीतिला हाँ कि नहीं मानाला मानवा लिपु नीति मानिकी चल कही तो लिपुला नीतिला मानाला तो ओबियसली से तुमको मिल जो नहीं से इम्पोर्टेंट नहीं डन। तो एमती तुमको जहाँ भी क्वेश्चन आसो ना ये देख पुणी क्वेश्चन देछि ओडिशार भी देछि क्वेश्चन से। तो बेसिकली जदि आम देखा तो तुमको क्वेश्चन जहाँ पढ़ुच से क्वेश्चन आसो ये से ईप रिवर देछि तेल देछि तो राजरंगपुर कौटी अच्छी झारसुगुड़ा अपलैंड बलांगीर कौटी अच्छी मालकानगिरी कौटी अच्छी किए कौटू मैच करवा। अच्छा ओब्वियसली यही भाया क्वेश्चन को तो छाड़िया कथा नुह क्या ये तुमको क्लू दि जाए सब आंसर पे गोटे क्लू दि जाए। लेट्स से ये लिखाई झारसुगुड़ा अच्छा ठीक अच्छे बलांगीर टिटलागढ़ मालकानगिरी तो ओब्वियसली तुमको मालकानगिरी किए देखा मत कह मालकानगिरी कोएल सॉन्ग कोएल अच्छा ये कौन कोएल सॉन्ग कर देछि ना ये तो हम मालकानगिरी किए अच्छी साबरी साबरी सिलुरु एपटे आसीज ताले कौन आसीज साबरी सिलुरु ओब्वियसली आमको किए साबरी एंड सिलुरु आसीज तो सहीटा आसीज तुम 3 ताले जदि आमको मालकानगिरी मिलगला 3 ताले इफ बेसिन को पटे आसो को इफ 3टा रिवर अच्छे गोटे इफ गोटे है मांड सेपटे रपटे रही किए ओडिशा साइड किए एनीवन ओडिशा साइड किए ओडिशा रे तेल ओडिशा साइड किए तेल इफ मांड हासदेव ये सब बा लेफ्ट साइड रो इफटा कौटी छत्तीसगढ़ एबे छत्तीसगढ़ रो ओडिशा को आसीबो जेतल से राजरंगपुर हेकी आसीबो ना राजरंगपुर हेकी आसीबो ना जेतु लेफ्ट साइड कोटा कहलो सांखाउ कोयल एठी आसीबो ना सांखाउल कोठी आसीबो द सांखाल कोयल जते हमें झारसुगुड़ा को तो एटा कौन आंसर कौन देछि ए देछि ये कौन A4 कोयल एंड शंख अच्छा राजरंगपुर हाँ हाँ ठीक अच्छे नहीं हाँ ठीक अच्छे तो यहाँ हाँ तो ये आमर मैच होगला क्या सहित मालकानगिरी साबरी सिलुरु सहित ताले D3 जदि हम ना यहाँ कौन 3टा क्या सहित पड़ला माल कौन कहल एटा मालकानगिरी कौन कही BACD आंसर ए देछि A4 ठीक अच्छे A4 ठीक अच्छे झारसुगुड़ा
बी को कहा को नहीं हाँ ये ठीक अच्छे झारसुगुड़ा ठीक अच्छे ये दुटा ठीक अच्छे ये दुटा ए एंड बी करेक्ट सी को आस बलांगीर टिटलागढ़ पटना अच्छा ये तो बलांगीर आउ जो टिटलागढ़ ये तो आसो तुम तेल आसो ना एपटे तेल रिवर आसूची ये तो बलांगीर है कि तेल रिवर आसुनी कि ए तेल रिवर आसो एठी हाँ कि नहीं तो ये तेल आसो दैट मीन C2 हम ये C3 दे देइछि तो ये भूल आंसर यहाँ बुझीपार ना क्या यहाँ मालकानगिरी साबरी हम आना हो पारे आंसर बुझीपार ना आंसर यहाँ गलत है आंसर मुझे क्लियर आंसर यहाँ इंटरचेंज हो आंसर गलत हो देखी दियो मालकानगिरी किए साबरी सिलुरु नहीं कि तो ताकू तो छाड़ी पार ना तो ओबियसली आंसर यहाँ गलत अच्छी तो ये टिके चेंज कर दो करेक्ट तो ये देखा तो आंसर सहीटा रहा टे इंटरचेंज करदेव ये लिखाई मालकानगिरी एक्सप्लानेशन लिखाई मालकानगिरी साबरी किंतु से आंसर दिखाई भूल लिखाई कि डन तो या आम तो ये मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन सेमती देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विथ चिलिका लेक तो चिलिका लेक सहित कौन रहिबो ओब्वियसली हाँ कि नहीं ये सब रहिबो ना लैक्विस्ट्रीन अर्थात कौन लैक्विस्ट्रीन अर्थात डिपोजिशन और आम कहबा डेल्टा फॉर्मेशन इन डिप्रेस रीजन डेल्टा फॉर्मेशन इन डिप्रेस्ड रीजन को कहुए लैक्विस्ट्रीन प्लेन तो और से डेल्टा करि पारे नहले प्लेन करथाय सिंपल देखो लेट्स से चिलिका चिलिका हे परे कौन से गोटे वाटर बॉडी हिते लेट्स से गोटे रिवर जाउची एठी ए जो डिपोजिट करबो तार माउथ रे जा प्लेन फॉर्मेशन करूची आकु हम कहबा लैक्विस्ट्रीन प्लेन जदि कौन से गोटे तो ये भले लेक बा डिप्रेस्ड एरिया रे करूची इनलैंड हेथिबा दरकार सेटा कौन सी मु कहली कौन से रिवर बा स्ट्रीम एटा क्लास रे पढ़ाई जेहेतु तुम मान ओडिशा जोग्राफी पढ़ाई एटा प्रीवियस पिला पढ़ाई जेहेतु या लैक्विस्ट्रीन अर्थात कौन कि एनी स्ट्रीम और रिवर दैट फॉल इनटू इनलैंड वाटर बॉडी सेटा गोटे लेक है पारे बा कौन सी गोटे डिप्रेस्ड एरिया रे जदि प्लेन फॉर्मेशन कला ताको हम कहबा लैक्विस्ट्रीन प्लेन बट एटा लेट्स से बे ऑफ बंगाल आरबीएन सी ताको हम लैक्विस्ट्रीन कहबानी बुझिपार ना एटा इनलैंड हेथिबा दरकार ना एटा देखो एक्सेप्शनल सो सेथिन से पचारले ठीक अछि लैक्विस्ट्रीन प्लेन तो दैट वुड बी देयर देन एठी देखो ओडिशा एक्सपीरियंस टाइप ऑफ क्लाइमेट को ट्रॉपिकल सावाना टाइप ऑफ क्लाइमेट तुम कहबो एटा आमे जानिबा केमती ट्रॉपिकल सावाना बोली केमती जानिबो कोपेन क्लासिफिकेशन तो यहाँ कौन आसो कोपेन क्लासिफिकेशन तो कोपेन क्लासिफिकेशन रू आसीज ये ठीक अच्छे तो ये कोपेन क्लासिफिकेशन रू जानिबा आमे सावाना टाइप ऑफ क्लाइमेट बोली ठीक अच्छे तो एमती क्वेश्चन आसूची तो क्वेश्चन किसी बेसी डिफिकल्ट नहीं बस आमको टिके कॉन्सेप्ट को पढ़िया पड़ो एंड मु कही ना जोटा तुमको डिफिकल्ट लगुच मु पढ़ेबी ये छाड़देवा आउट तो सहीटा ही क्वेश्चन आसो एटा तो आगुरी कही बहुत थर तो जहाँ ये देखो ये किसी इजी क्वेश्चन नहीं किसी इजी क्वेश्चन नहीं बट तुम जी सबू सब्जेक्ट रे कह अच्छा ज्योग्राफी डिफिकल्ट है छाड़देवा इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट छाड़देवा भाई सिलेक्शन हम केमती केमती सिलेक्शन हम कह केमती हम कौन खाली आम से पॉलिटी पढ़ी करदे सिलेक्शन की ना खाली तुम कह करेन्ट अफेयर पढ़ी करदेव किसी तो हेनी ना जड़े कह खाली सर हिस्ट्री पढ़देवी तो किसी हो पारे खाली ज्योग्राफी पढ़ले भी हेनी तो बेस्ट है टू एवरेज योर सेल्फ सबू सब्जेक्ट किसी किसी जान बट मुझे से सब्जेक्ट सब बेस्ट जिनस जाना से सब्जेक्ट सब बेस्ट को जाना भलसे कनसेप्ट क्लियरिटी कर देन तुम क्वालिफाई कर चांसेस बढ़ो लास्ट टाइम केते कट ऑफ जीव 52 भाव ओपीएस रे लास्ट टाइम मु कही 52 रु 55 जीव कट ऑफ
एबे भी यूट्यूब रे अच्छी तुम देखिबो मु कहितली 52 रु 55 कट ऑफ जीवो लास्ट टाइम तो देखियो कट ऑफ केते जाउची बट यदि 8 भी कट ऑफ कम जाए आई वुड नॉट बी सरप्राइज भाबो कारण ता पूर्वरु जाइथिला केते 72 तेणु करी 20 मार्क्स जदि मु माइनस करूची एटलीस्ट 52 रे पहुंचबो भाबो 52 रे कट ऑफ हेची ताले याठू जदि कट ऑफ को क्लियर करिवो ता पई सबुठु भलो हैला कि नेगेटिव मार्किंग को कमाओ सबुठु बेस्ट आइडिया हैला देख 52 किए आनी परिबोनी समस्ते आनी परिबो ताले होउनी कोन पई बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्क तो जे नेगेटिव मार्क को रिड्यूस करिवो से ही क्वालिफाई करिवर चांसेस बहुत अधिक ता पई दरकार कोन करेज करेज अर्थात कोन कोन हेते किछि पिला देखो प्रथम 20टा क्वेश्चन आसुनी तो से सबु मार दो तापरे कोन भाबे से सेठी केमिति भी तो हबनी सेमति हबनी सबु मार दिए काली हेई जिवो बस सेही चक्कर सबु जिवो 20टा क्वेश्चन जाओ ना कोन हो जो तुम 20टा क्वेश्चन कोन करिवो आउरी 80टा क्वेश्चन अछि फिर भी 20टा माइनस कर दो फिर भी 40 आउरी रहला 60टा क्वेश्चन 60टा क्वेश्चन कले 120 तो तू कोन दरकार तुम 40टा क्वेश्चन करनो 45टा क्वेश्चन करी के आसो 50टा करी के आसो दरकार नहीं 50टा क्वेश्चन छाड़ी दियो दरकार नहीं हमको 150 मार्क बुझ तो अटेम्प्ट करो 50 टू 55 क्वेश्चंस एनफ वर्तमान पैटर्न को नहीं कि मु कहबी बट जो माने बहुत पढ़ी चंती से मतलब यूपीएससी वगैरह तो से माने अधिक करंतु से 70 करंतु किछि असुविधा नहीं 65 70 75 करंतु किछि असुविधा नहीं बट तमे सब मार दे सो खत्म हे जो नेगेटिव मार्क हे जो टोटल मार्क टा भी नेगेटिव हे जो 5 10 भी रहइबनी से भी नेगेटिव हे जो सो मेक श्योर के नेगेटिव मार्किंग को तमे कमौचो तो ताकू बहुत प्रॉपर्ली हैंडल करो तो ये ओब्वियसली आज वेरी इंटरेस्टिंग क्लास थिला तो मु किछि देखै भी देली तम मानको ना मते एबे कहो जहार जा अछि कोन कहतला सी सेट वगैरह कि जहार जहा असुविधा अछि एबे मते कहो आई विल हिट टू दैट एज वेल